Right, Bismillahirrahmanirrahim. So today we will learn how to write down the commands by ourselves. That means we will not use the wizard, we will type the commands, right? So now, first of all, let me tell you what is the language to write commands in databases. So that is known as SQL, SQL, right? And that makes structured query language, a language that is used to write commands for the database, right? So always remember there are SQL, and PL SQL, programming logic SQL. In fact, this is the same language, but the SQL is simple. It is structured query language. It is normal language. But when we want to add some loops and other programming logic, then we use the command PL SQL. So in today's lecture, we will talk about only the SQL, right? Structured query language. So now, first of all, we must know that how to write the commands in MS Access, or where to write the commands. So now write down a simple heading, how to write SQL command in MS Access. लिखिए बेटा, मैं भी बता भी दूं, how to write SQL commands इन MS Access. देखो बेटा, जो लैंग्वेज है जो डेटाबेस के लिए यूज होती है डेटा को टेबल्स को क्रिएट करने डिलीट करने के लिए, इसी तरीके से जो यूज होती है डेटा को फेच करने के लिए, वो जबान है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो अभी हम देखेंगे। और इसी का एक एनहांस वर्जन है, या कह लो कि इसी का और आगे, जिसमें हम प्रोग्रामिंग की लॉजिक डाल देते हैं, हम उसमें लूप्स लगा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं PL SQL, प्रोग्रामिंग लॉजिक सीक्वल। तो अब आप देखो अभी हम कैसे शुरू करेंगे। सो नाउ राइट डाउन मेन मेन्यू, क्रिएट, लिखते जाओ। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो नाउ राइट डाउन मेन मेन्यू, क्रिएट, एरो डाल के लिखो क्वेरीज, एंड नाउ राइट डाउन क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन। So now when I click query design, check. This is the same dialog box where we used to add the table and then design the query. But now what you will do, simply write down without adding any table, close the show table dialog box. लिखो जरा, without add नहीं करना अभी table, without adding any table, क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। आप लोग लिख रहे हो या इसको बाद में करने का सोच रहे हो? मुझे बता दो ताकि मैं फिर उतना लिख डिले लिया ना। सर। अच्छा, लिख रहे हो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, फिर ठीक है। मैंने अगर सिर्फ सुन रहे हो तो मैं टाइम ज़ाया ना करूँ आपका, ठीक है। विदाउट एडिंग एनी टेबल, क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। देखो जरा अब मैं क्या करता हूँ, जरा मैं इन साहब को ले आऊँ क्लास में, ठीक हो गया। नाउ चेक, I have not added any table and I close this dialog box like this. Check here, you can see something, SQL view, yes or no? In this corner, in this left top Yes, sir. corner, check, right? Yes, sir. So when Yes, sir. Yes, sir. when I close, it is closed. I drop this down. I have design view. I have SQL view. So I will click SQL view. So now write down from the left top corner, select the SQL view. From the left, आप लोग अक्सर कहते हैं सर मैं समझ ही नहीं आई कि कहाँ लिखना था और कैसे। So write down from the left top corner, select the SQL view. Now check. When I click check, क्या होता है? Look, this area is not editable or typeable, but when I click SQL view, check here I can write. So it is an editor of SQL.
right, of MS Access where I can write down the command. बताओ पहले समझ में आया कि नहीं? ये जगह पहले ऐसे Yes, नहीं sir. थी, अब ये एडिटर बन गया है, ठीक है, SQL व्यू में. सो नाउ राइट डाउन डेटा. अभी अपने हेडिंग दो, TL आप लिख लो. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स इन SQL. कैपिटल लिखना, इन SQL. Two broader categories are two broader categories are कौन सी दो कैटेगरीज है देखना. नंबर वन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. और नंबर टू लिखो, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. बेटा एक बात का ख्याल रखना. इनफैक्ट दीज आर नॉट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, रादर दीज आर जस्ट द कैटेगरीज ऑफ SQL. याद रखना कि ये अलग लैंग्वेजेस नहीं है, ये SQL की ही दो हमने ब्रॉडर कैटेगरीज डिफाइन की. एक में डेटा डेफिनेशन को रखा, DDL कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? DDL. राइट. और दूसरी को हम क्या कहेंगे? DML. DML. वेरी. अब मैं बस देखना चाहता हूँ लिख रहे हो कि नहीं. वेरी गुड. अब देखो बेटा, सो नाउ इनफैक्ट इसके लॉजिक समझना कि इसमें हम क्यों कह रहे हैं कैटेगरीज. देखो बेटा, वन थिंग इज टू क्रिएट अ डेटाबेस. सो डेटाबेस को क्रिएट करना, देन टू डिलीट द डेटाबेस और अ टेबल, then to add an attribute in the table. In fact, these are the things that are defining the database. मैं उसको उर्दू में बताता हूँ. डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को या टेबल को पूरे को डिलीट कर देना, डेटाबेस में कोई एक कॉलम या फील्ड ऐड कर देना, ये वो काम है जो कि डेटाबेस को या टेबल को डिफाइन करने में या रीडिफाइन करने में काम आ रहे हैं. बताओ यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो दैट मीन्स हमारी उस पूरी लैंग्वेज में कुछ कमांड्स ऐसी होंगी जो डेटाबेस के टेबल को डिफाइन रीडिफाइन करने के काम आएंगी. और फिर देन वी हैव द अदर टाइप इन विच वी हैव द कमांड्स दैट नॉर्मली फेच डेटा फॉर मी. टेबल को नहीं छेड़ती. They do not change the table, they change the data only. So those commands, with the help of which I can fetch the data, I can change the data, not the table, not the design of the table, but only the data. Instead of semester 4, I will write down semester 5. So I am changing data, so that those commands are known as data manipulation language. उर्दू में सुन लो कि हम टेबल का डिजाइन नहीं चेंज कर रहे, डेटा की डेफिनेशन नहीं चेंज कर रहे. हम टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, टेबल के अंदर, टेबल का डिजाइन नहीं चेंज होगा, टेबल नहीं डिलीट होगा. टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. लिहाजा वो कमांड्स जो कि हमें डेटा को मैनेज करने के काम आए, तो हम उसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहना शुरू करते हैं. बात समझ में आती है? Yes, sir. सो नाउ अब देख लो, लिख लो. आपने भी इसको लिखी तो नहीं डेफिनेशन इनकी ना? No, sir. No, sir. राइट डाउन. चलो चलो लिखो तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लिखो मेरा बेटा. हेडिंग दोबारा, जस्ट गिव इट अ हेडिंग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड राइट डाउन. मैं जान के इसमें सीक्वल का लफ्ज यूज करूंगा ताकि आप फिर भी कंफ्यूज ना हो गया कौन सी लैंग्वेज है. These are the commands of SQL language. Write down. These are the commands of SQL language. SQL language that are used that are used
to create, modify, delete, comma, change, डिजाइन, ब्रैकेट में लिखना डिजाइन ऑफ, ब्रैकेट में डिजाइन ऑफ अ टेबल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, create, 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 comma, alter, 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 comma, drop, 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 एटसेट्रा। बेटा ये नॉर्मली हम लोग जब टाइप भी करते हैं कैपिटल में करते हैं, लेकिन अभी आपको मैं दिखाऊंगा, और ये ठीक है, सवाल आपका दुरुस्त है। ऑरिकल में हम इसको कैपिटल, आपके सर आप इसको कैपिटल में करवाएंगे, इसलिए मैं भी चाहूंगा आप कैपिटल में लिखो, लेकिन मैं आपको साथ में प्रूफ करूंगा कि एक्सेस में ये स्मॉल के साथ चलता है, क्योंकि मैंने दोबारा जोड़ बता दूं कि जो एक्सेस है ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, ये आपने बस ख्याल रखना। सर काइंडली रिपीट कर लें, फॉर एग्जांपल से आगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखवाया, मुझे तक कोई और बच्चा बोलेगा ताकि मैं वहां मैंने क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। अच्छा ठीक है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कमांड्स है क्रिएट, कॉमा, ऑल्टर, मैं बताऊंगा ये क्या करते हैं, सब बताऊंगा, कॉमा, ड्रॉप, एटसेट्रा। अब जरा लिखो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट डाउन द हेडिंग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लिखा है? यस यस सर। सर। राइट। अच्छा अब एक काम करो, these are the commands of SQL that are used to manipulate data, to manipulate data. For example, insert new records, modify the data, insert new records, modify the data, comma, delete data, etc. For example, select, 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 update, 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 comma, delete, etc. हाँ जी, अब मुझे कौन बताएगा कि ये जो मैंने अभी बात की है आपके DDL और DML की, ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर ये बेटा एसक्यूएल की दो ब्रॉडर टाइप्स, जो कि एक डाटा को मैनेज करने के लिए और एक डाटा को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। डिजाइन को आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा, जरा थोड़ा सा सिर्फ ये बता दो। सर मेन उसका मैं आपको बताता हूँ सर। सर उसको क्रिएट कैसे करना है,
उसको मतलब ड्रॉप कैसे करना है इन चीज़ों पे। और देखो सर जब FC देखो पहले समझ लो इसको। ये सर ऐसे होता है कि जैसे अगर आप ये चाहें कि टेबल को बनाना है, वी हैव टू क्रिएट अ टेबल, वी हैव यस सर। टू डिलीट द टेबल नॉट द डेटा। फर्क को समझ लो, बट तुम्हें ये ना रट्टा भी लग जाएगा, याद भी हो जाएंगी, लॉजिक समझ में आ जाएगी। देखो यस मैंने सर। जो जो कंटेनर बना रहे हैं, आई हैव टू मेक अ टेबल, आई हैव टू मेक अ डेटाबेस, so the commands that will be used for that, those would be in fact the data definition language. And then यस data सर। manipulation mean we can change the data। इसमें से select को काट दो, क्योंकि उसको मैं एक थर्ड टाइप टेबल के, मैं एक मिनट यार, मैं एक स्लाइड शो को खोलना चाह रहा हूँ, मुझे टाइम दो। चलो खैर मैं उसको सर साइड मैं पे लगा। स्क्रीन नहीं नहीं, मैं तुम्हें शो नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ना एक पुरानी अपनी प्रेजेंटेशन कई साल पहले की देखना चाह रहा हूँ, कि मेरी नई वाली गुम हुई है, लेकिन वो पुरानी उसी पे बनी हुई है, वही चीज़ अभी भी यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कमांड्स तो नहीं बदली। तो अभी देखो, जब आप व्हेन यू चेंज द टेबल, व्हेन यू क्रिएट अ टेबल, देन वी कॉल दोस कमांड्स द data definition language. And when we change the data, we delete the data, we insert the data, then those commands are known as data definition language। तो अब देखो मेरा बेटा, जहां पर आपने क्या इसी एग्जांपल्स में कौन कौन सी कमांड लिखी थी? create alter क्रिएट drop। अल्टर ड्रॉप ठीक है, और डेटा मैनिपुलेशन में क्या लिखा था? सेलेक्ट select अपडेट delete। और डिलीट। अच्छा, सिलेक्ट की जगह आप सब बच्चे लिख दो इंसर्ट, क्योंकि मैं इसको एक थर्ड टाइप पे लेके जाना चाहता हूँ। आई विश मुझे वो मिल जाए तो मैं तुम्हें उस पे ले जाके दिखाऊं, तुम्हें वो स्क्रीन पे तुम्हारे रिकॉर्डिंग में आ जाए वो सारा कुछ। और तीसरी टाइप भी इसकी लिख लेना, क्योंकि उसको मेरा जहन में आ रहा है कि शायद मैंने उसको अलग कैटेगरी में डाला था। थर्ड लिख लो, हेडिंग दे दो, डेटा रिट्रीवल स्टेटमेंट। डेटा, बाज लोग इसको DRL भी कहते हैं, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। बेशक आप डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज लिख लो या डेटा रिट्रीवल स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट लिख लो। दिस इज अनदर कमांड ऑफ SQL। मिल गया यार, मिल गया ये मेरा, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर लूँ। दिस इज अनदर कमांड ऑफ SQL that is used to fetch data। टू fetch यानी fetch होता है एक्सट्रैक्ट करना, घसीटना, लेकर आना। fetch data from the table। फॉर एग्जाम्पल select, SELECT। इसको थर्ड कैटेगरी, ऑल्दो कि इसमें आता है, लेकिन इसको थर्ड कैटेगरी में डालते हैं। और वाकई ये देखो ना, मैं ये याद आ रहा था, ये आ गया, मैं तुमसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये शुक्र है कि मेरी ईमेल में था। मैं चाह रहा हूँ कि ना तुम्हें दिखाया जा सके कि क्या चीज़ है। अब बताओ कि तुमसे शेयर हो रही है स्क्रीन या अभी नहीं Yes और ये sir। सर हो रही है? अच्छा अब देखो, इसके लफ्ज़ों में शायद फ़र्क हो यार, और थोड़ा सा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत पुराना लिखा हुआ, लेकिन है वही बात, वही है। सो वी हैव डेटा रिट्रीवल स्टेटमेंट और डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, सीक्वल की ही लैंग्वेज है, उसी की स्टेटमेंट्स हैं। सिलेक्ट इज द डेटा एक्सट्रैक्टिंग, देखो वही फेच करना स्टेटमेंट, विच रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस और द टेबल, ये वही हो गई। सेकंड डेटा देखो, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेटमेंट्स, ये उनसे बनी है, दैट आर यूज टू मैनिपुलेट विद द डेटा। इट हैज थ्री कमांड्स, और ये इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इसमें बहुत वेरिएशन है। आपके सर आपको पूरी लैंग्वेज सिखाएंगे कई हफ्ते, तो ये वो है। फिर है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दिस इज लैंग्वेज यूज टू डिफाइन द tables and the database। It sets up, changes and removes data structure। data structure क्या है? टेबल, ठीक है, आपने फ्रॉम द डेटाबेस, ये टेबल लिख दिया फ्रॉम द डेटाबेस। इट हैज मैनी कमांड्स, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट। अब आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या चीज देखी थी। नाउ चेक द फर्स्ट कमांड। अब इसको देखना, मैं तुम्हें यहाँ पर इसमें कोई गड़बड़ हुई, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, तो मैं उसको यहाँ पे जाके
ठीक करके आऊंगा, मुझे अभी एक नजर आ गया है क्योंकि ये बहुत पुराना था और ये अभी तक मैंने फिर डाउनलोड किया है इसको अपने ईमेल से। देखो बेटा, नाउ राइट डाउन क्रिएटिंग अ टेबल, जरा इसको लिखो, क्रिएटिंग अ टेबल। एंड नाउ चेक, मुझसे आगे कोई नहीं चलना, उसमें फिर नुकसान ये होता है कि बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं। देखो बेटा, ये है कमांड, अभी लिखना नहीं है, किसी ने नहीं लिखना है, इसमें पूरी लॉजिक लगाओ। ये तुम्हें 2 मिनट के अंदर में याद कर, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम रट्टे लगाओ, तुम इसको समझो। जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द कमांड एंड द सिंटेक्स ऑफ द कमांड, and then we will write down the command and you will find here it is so easy. So now check, the syntax is, first of all we give it the reserve word create table. This is the word that you have to use as it is. Then in the less than and greater than symbols, we give something that means you will have to write down here, and that is must. What will you write down after create table? The table name. So here create table, then space, then table name, then space. Either you can write down in a single line, or for the better readability, we go to the next line, we start with the bracket, and we give it the name first field, field 1, space, its type, text type hai, number hai, whatever. Then its width, and then check here in the square bracket. In दिस ट्यूटोरियल वेयर एवर, और मैं बताऊं हमारे ज़माने में बड़ा कॉमन था जो हम सिंटेक्स लिखते थे, अगर कोई चीज़, इफ एनीथिंग इज ऑप्शनल, दैट इज you do not write down, even then this command will run. So we used to put it in the square brackets. So that means if I write down not null, or if I write down null, okay, and if I do not write down not null or null, even then my command will execute. फिर सुन लीजिए बेटा, हमारा सिंटेक्स ये होता था कि हम रिजर्व वर्ड, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर जो चीज आ रही है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना। टेबल का नाम क्या है? आपके स्टूडेंट टेबल। आपके टेबल का नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल फी टेबल, तो ये वो यहाँ पर आएगा। फिर हम इसके बाद इसके आगे लिख सकते थे, लेकिन हम निचली लाइन में गए। फील्ड 1, रेज नंबर, टाइप, टेक्स्ट, विड्थ 5, फिर हम कॉमा देते हैं, देन वी गिव इट अ कॉमा, then we go to define the second, then the third, and so on. So this is a syntax again, the reserve word create table, then the name of the table that we want to create, then the bracket start and bracket closes after this, then the first field name, then its type, then its width, we close, and then semicolon tells the compiler that command has finished over here. If you will not give it a semicolon, then it will give you the errors, right? And now what about this? Sir, we will write this or not? Check. In my example, I did not write, but it has an effect. And what is that effect? If I do not write down in front of my fields null or not null, then by default it will allow null. अगर हम null या not null नहीं लिखेंगे तो ये by default इसमें null value लेनी शुरू कर देगा. So now check the example, create table, reserve word, and then the name of my table that I want to create is student table. Then I start the bracket. First field is reg number, its type is text, and its width is 6. If I want that it must not be null, I will give it a space, and then I will write down not null, not in the square brackets. Square bracket just meant that whatever is written inside, you will have to write it down in the command. So you will not put these square bracket in the real command. So reg number, text 6, and then not null. फिर name text, फिर class text, and when we will execute this command, it will create a table for you. Are you getting me or not? Yes, sir. यस सर. यस सर. चलो अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे टाइम के भागने की रफ्तार समझ में आ रही है, जो हमने वो टाइम उस वक्त थोड़ा सा हो गया ज्वाइन के, तो मैं अभी काम क्या कर रहा हूँ, नोट करना, मैं अभी प्राइमरी कीज को हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एकदम से. तुम लोग सिर्फ अपने पास लिखो, तुमने अभी सिर्फ क्रिएट टेबल लिखा है,
I did not tell you about the prime, although it is very easy, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये बताऊं कि कांस्टेंट क्या होता है, उसके ऊपर रूल लगा देते हैं, फिर उसके कांस्टेंट को हमें ना ऑब्जेक्ट बन जाती है कांस्टेंट, हम उसको कोई नाम देते हैं, फिर हम रिजर्व वर्ड यूज करते हैं। इसीलिए जब कॉम्पोजिट की होती है तो एंड में मैं दिखा भी देता हूँ, हम एंड में जाते हैं कांस्टेंट। इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट उस पर रखता हूँ, फिलहाल तुम्हें मैं आसान चीजों के साथ लेके चलता हूँ। तो क्रिएट टेबल का एक लिख लो, तुमने कमांड लिखी है अभी, प्राइमरी की नहीं देखी। नाउ राइट डाउन टू डिलीट अ टेबल अलोंग विद ऑल कंटेंट्स, एक टेबल को ही उड़ा देना है। दैट मीन्स डेटा विल बी रिमूव्ड ऑल्सो, बट द मेन पर्पस इज टू डिलीट द टेबल, पूरा टेबल उड़ा देना है। सो वी हैव अ कमांड ड्रॉप स्पेस टेबल, ड्रॉप टेबल and then the table name again, and then semicolon. So my example is drop table student underscore table 2. When I will execute this command, it will simply delete my data. बात समझ में आती है कि नहीं? सॉरी, delete my table. समझ में आता है? यस अगर मैं कमांड रखूं तो ये डेटा तो नहीं, डेटा के साथ साथ टेबल ही उड़ा देगा। तो ये देखो डेफिनेशन लैंग्वेज में था। अब जो मैं रुका हूं कि मैं तेज चलना चाह रहा हूं, वजह कुछ भी नहीं थी, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे ये करके दिखाना चाहता हूँ। सो हेयर आई विल राइट डाउन ए कमांड फॉर यू, एंड देन मैं बोलता जाऊंगा, जिन बच्चों को नजर ना आ रहा हो, अगर वो लैपटॉप पर नहीं है, मोबाइल पर, मैं बोलूंगा। देखो अभी आपने सीखा था क्रिएट टेबल, यही था, देखो क्रिएट टेबल लिखा है, ऐसे ही था। यस सर। यस अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ TEST_T, और मेरी मेरी कन्वेंशन है, आप बेशक आगे टेबल ना लिखें, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को साथ लगाता हूँ ताकि मुझे समझ में आए ये है क्या चीज़ बनी हुई। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी थोड़ी देर के बाद। क्रिएट टेबल, टेस्ट टेबल, आई कैन राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ इट लाइक दिस, ब्रैकेट स्टार्ट करूँ, शुरू कर दूँ, but I told you just keep it readable. So I go to the next line, I start with the bracket, and now I write down, for example, टेस्ट टेबल है, हम कुछ भी रख देते हैं, CID, कस्टमर की ID, सॉरी, C-ID, कॉमा, इसकी टाइप है टेक्स्ट, कॉमा, और इसकी विड्थ को ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 10 ये बल्कि 5, चलो 4, ये हो गया। और अब हम आई जस्ट पुट सम कॉमा इन इट, देन आई एम गोइंग टू द, मुझे भी कॉमा नहीं डालना था, एक सेकंड रुक जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो CID, नो कॉमा, स्पेस, then text, yes, after this field I will put a comma, then I'll go to the next line, C name, customer name, text type, and then here its width would be 20, and then closing bracket, and then semicolon. So I have written down create table, table, then CID text 4, CNAME text 20, semicolon. And now check, we can run this command by going to the design menu, and in the design menu we have this command run. So when I click this run, बाद में बताऊंगा, अभी एक मिनट रुक जाना, ठीक है। वैसे तो मैं एक एहसास दिलाना चाह रहा हूँ क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर कितने टेबल्स हैं इस साइड पे, 1 2 3 4 5 6। When I run this command, syntax error in the field definition, हाँ देखो अब समझ जाना, यहाँ पे CID लिख दिया था मैं, C-ID, ये डैश को नहीं ले रहा, ये ख्याल रखना, इसका सिंटेक्स में है, अभी आप खेलोगे समझ में आएगा। मैंने इसको रन किया, कुछ हुआ जो मुझे पता नहीं चला। अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7। So now here I have a new table that has the name test table, ये देखो नया बन गया है। So when I run this query, it creates the table. When I open this, check CID और CNAME आ रहे हैं, yes or no? यस सर। तो Yes, अब sir. देखो Yes, जरा, sir. इसका मतलब ये हुआ कि टेबल क्रिएशन कुछ मुश्किल नहीं थी, हम इस तरह कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फील्ड डिफाइन करेंगे, इसमें प्राइमरी की कांस्टेंट डालेंगे, तो हम बहुत कुछ करेंगे अभी। लेकिन अभी ये बताओ कि कमांड तुम्हें समझ में आई है या नहीं? हाँ जी सर। तो हाँ जी सर। एक काम करो जल्दी से, बस मैं 3 4 कमांड्स पे भी करके
अगली क्लास में इसको तफसील से, ताकि तुम लोग बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से करो, नया टीचर ये ना कहे कि किसी ने पढ़ाया नहीं था। चलो जी, मैं इस कमांड को, ये देखो अब नजर आ रही है कमांड, जल्दी से इसको लिखो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसी कमांड को तुम चला कर देखो, तुम्हें कोई एरर नहीं आना चाहिए, तुम परेशान ना हो कि हमसे नहीं हो रहा। ये देखो पहली चीज तो ये हो गई, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और ये बुलेट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये ऐसे होगा। अब नजर आ रहा है? ख्याल रखना, बहुत बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, कोई ढकी चुपी बात नहीं है, ये तुम्हारे पेपर्स में आएगा, बस ये ख्याल रखना। इसलिए छोटी छोटी सी कमांड्स हैं, इनको याद करो और फिर तुम देखोगे तुम इसको कैसे कर सकते हो। चलो अब चेक करो जरा, वापस हो गया? यस यस। अब देखो मेरा बेटा, मैं इसी टेबल को अब देखो, मैं इसी कमांड को दोबारा रन करूंगा तो क्या ये करने देगा? सोचो, लॉजिकली सोचो। ये मुझे नहीं करने देगा। मैंने रन यस किया, सर। इसने का टेबल पहले मौजूद है। याद आया रिलेशनल की प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास कोई टेबल हो तो एक डेटाबेस सेम नेम के साथ दो टेबल नहीं रख सकती। यस और नो? यस सर। अब अगर मैं इसको टेबल 2 कर दूं और मैं इसको रन करूं तो देखो ये क्रिएट करेगा। क्लिक किया, देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ है। देखो आपके पास स्टूडेंट, आपके पास टेस्ट टेबल 2 आ गया। यस और नो? यस सर। अब Yes, देखो sir. मैं इसको डिलीट करता हूँ, टेबल ही डिलीट कर दो, डेटा नहीं टेबल, DROP, ड्रॉप स्पेस टेबल, सॉरी ये मैंने कैप्स को क्यों ऑफ किया है, टेबल स्पेस, और इसके बाद क्या करना है, उस टेबल का नाम देना है जिसको आप मिटाना चाहते हो, टेस्ट अंडरस्कोर टेबल 2 सेमीकोलन। जो ही मैं इसे क्लिक करूंगा इस वाले टेबल को ये उड़ा देगा जिसका नाम है टेस्ट टेबल 2। सो व्हेन आई रन दिस कमांड, check it has deleted. Yes or no? Yes, So sir. किसी, so Yes, do sir. not run this command on any table that is required, that is important for you. Only test this command on a table that you have created yourself, just to delete that table. उस पे इसको चलाना, वरना यहाँ से undo नहीं करने देता फिर हमें इसके बाद। समझ आ रही है बात? Yes, yes, sir. So now we have two commands. Number one was create table, right? And the second one is drop table and then test अंडरस्कोर टेबल सेमीकोलन। ये इतनी छोटी सी आसान सी एक कमांड है, इसको भी लिख लो जल्दी से। ड्रॉप टेबल और टेस्ट टेबल। चलो अब देखो जरा, नाउ व्हाट आई वांट टू फेच, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट, आई वांट टू ब्रिंग सम डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। This is my table and I want to fetch all that data. So I close this down and I write down a query. So the query would be the data retrieval language. Retrieve करके लाएगी। तो so we have studied that has a command select, and now check over here, ताकि हम थोड़ा सा उसको दिखा भी सके, फिर मैं लिखूंगा उसके बाद। अभी है टाइम थोड़ा सा, तो मैं उसको एक मिनट, ये रहा, ये देखो जरा, ब्लू पे नहीं जाना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। नाउ चेक रिट्रीविंग और एक्सट्रैक्टिंग डेटा, और वी कैन डिस्प्ले डेटा। अव्वल तो होता है फेच करना, निकाल के लाना, लेकिन अभी हमने यहाँ पर रखा है रिट्रीव, ये भी वही मीनिंग है, और डिस्प्ले का मीनिंग तुम्हें आसानी के लिए कि समझ में आए। सो नाउ द कमांड इज सिलेक्ट
and which fields of the table you want to see with this command. For example, there is reg number, name, and class. You only want to see the reg number and the name. You do not want to see the class in that query. So I will mention the fields, then I will write down from where. I have 10 tables in my database, so I will have to mention from एंड टेबल नेम, किस टेबल से उठा कर लाना है, किस टेबल से उसको मैंने डेटा को लेकर आना है. सो फ्रॉम के बाद मैं टेबल का नेम दूंगा और अभी वेयर की कंडीशन को मैंने यहाँ पे ऑप्शनल रखा है. तो मैं जरा एक दफा ये वाली कमांड लिख के आपको दिखाऊं ताकि आपको पहले समझ में आए, फिर आप मुझसे पूछो कि सर ये पता नहीं. सिलेक्ट, अब देखो मैं यहाँ पे फील्ड नेम की बजाय स्टैरिक डाल रहा हूँ. स्टैरिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम ऑल कह रहे हैं, सब ले आओ, सारे फील्ड ले आओ. बाद में मैं दूसरे तरीके से भी करूंगा. सिलेक्ट ऑल एंड देखो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम टेबल डैश स्टूडेंट, जो हमारा टेबल था. देखो बेटा मैंने इसे क्या किया, लॉजिक समझना. सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करो, रिट्रीव करो. स्टैरिक का मतलब होता है तमाम को. फ्रॉम कहाँ से, टेबल स्टूडेंट सेमीकोलन. इसको आप रन कर दें. अब देखो मैं डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ पे रन का ऑप्शन है. व्हेन आई रन दिस कमांड फ्रॉम क्लॉज, फ्रॉम में मैंने क्या किया, TABLE_student. इसका नाम यही नहीं था, अंडरस्कोर करें, आपने दूसरा लगाया हुआ है. नहीं मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है यार, इसमें क्या लगा हुआ है. नहीं कमांड में तो ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डैश नहीं लगा हुआ था. ये क्या लगा हुआ है, चलो चेक करता हूँ. नहीं कुछ और है. चलो मैं इसका टेबल बदल देता हूँ एक सेकंड की ना, इसके मुझे समझ में आ रहा है सीक्वल इसको नहीं मानेगा. एक्सेस ने अलाउ किया था, हमने कोर्स में डेटा डाला था ना कल कुछ, हाँ कोर्स में था. फ्रॉम टेबल, देखो मैं इसके ना ये भी गलती से कर रहा हूँ, देखो जरा ये गलती से हुआ है, जान के नहीं, लेकिन मैं जान के कर रहा हूँ. टेबल अंडरस्कोर COURSE, देखो बिल्कुल मैंने गलत लिखा है. यस और नो. मैं इसको अब रन करता हूँ. यस सर. और देखो रन करने में क्या होगा, ये देखो बेटा से डेटा को ले आया है. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था मैं आपको भी समझा दूंगा. पहले सिर्फ आप कमांड को देखो, मैं इसको सेव कर लूँ जरा. हाँ यस, और मैं इसे कहता हूँ SQL सिलेक्ट की पहली क्वेरी है, सॉरी SQL सिलेक्ट क्वेरी नंबर 1 था. अब देखो मैं यहाँ जाता हूँ, ये रहा SQL सिलेक्ट 1. मैं इसको डिजाइन व्यू में खोलता हूँ, देखो ये था मेरे पास. समझ में आ रहा है या नहीं. इशू वॉज दिस कि जो सीक्वल है ये इसको मान नहीं रहा था डैश को. तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट कर देता हूँ. एंड नाउ चेक, ताकि तुम्हारे जहनों में ये ना एरर आया था, कोई एरर नहीं था. सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर स्टूडेंट. देखो मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, सॉरी इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, ये देखो आफ्टर एंड ऑफ, क्या मैंने तो कुछ नहीं लिखा. अच्छा 2 दफा सेमीकोलन आया हुआ. तो ये देखो बेटा, अब ये उस टेबल में से तमाम डेटा को फेच करके ले आया. नाउ वी हैव दैट डेटा दैट इज प्रेजेंट इन दैट टेबल. यस और नो. यस सर. तो देखो अब यहाँ से गौर करो, जब इस कमांड को हमें लिखना होगा तो मैं इसको यूं लिखूंगा. और अभी सॉरी ये देखना जरा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट. मैं जान के एक लाइन में लिख रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं वो रीडेबल होता है. हम इसको फ्रॉम को अलग करते हैं, हर चीज को अलग करते हैं, तो ये हो जाता है. पहले बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया. यस सर. यस सर. तो देखो बेटा कुछ भी नहीं है, क्रिएट टेबल भी आसान है, ड्रॉप भी, सिलेक्ट भी. अब जो चीज मैंने छोड़ी थी एक लम्हे के लिए कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो अब हम वापस आते हैं, क्योंकि हमें चल के एक चीज और मैं करके दिखा दूँ आपको. अब मैं चाहता हूँ सिर्फ रेज नंबर स्टूडेंट का नाम नजर आए और कुछ नजर ना आए. देखो मैं इस कमांड को कैसे रन करता हूँ. पहले तो मैं इसको क्लोज करके सेव कर लूँ. यस,
चलो अब जरा देखो, मैंने जो कमांड थी चेंज की थी, यही वाली कमांड है, जरा नोट करना। मैं इसके डिजाइन व्यू में जाता हूँ। अब है सिलेक्ट ऑल। मैं सिलेक्ट ऑल के बजाय क्या कर देता हूँ, मैंने उसका फील्ड नेम क्या रखा था यार, st_name। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ ये नजर आए, सिलेक्ट st_, देखो मैं कैपिटल में नेम लिख रहा हूँ, तुम देखना इसको चलाएगा। अब मैं फिर आई गो टू द डिजाइन एंड देन आई रन दिस कमांड एंड नाउ चेक, इट इज ओनली showing me that field that I have mentioned. The fields that you want to show, that you want to fetch, you will have to write down those fields. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी। अब देखो यहाँ पे मैं इसी का वेरिएशन डाल देता हूँ, ताकि आपको से जो बच्चे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, दे आर सीरियस, तो उनको ये फील हो जी, उनको जी में ये फील हो यार ये बहुत आसान है, और ये वाकई में आसान है मजाक के अलावा। सिलेक्ट, अब मैंने क्या किया, st_name एंड फ्रॉम, तो देखो ये कमांड बन गई, चेंज हो गई। स्टैरिक की जगह st_name आ गया, एक फील्ड दिखाएगा। अगर मैं सिटी भी लिख देता तो तुम देखो सिटी भी दिखाता साथ में उस बच्चे की। तो देखो ये है वो कमांड। बताओ यहाँ तक समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ से, एक आखिरी सिर्फ तुम्हें बताता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह तुम ये करो, फिर मैं तुम्हें इसको नेक्स्ट करवाता हूँ। अब देखो ये तो सिंपल था, बट इफ आई वांट दैट, आई वांट टू सी ऑल दो स्टूडेंट हु आर फ्रॉम सम स्पेसिफिक सिटी, मुझे कंडीशन लगानी है। तो देखो मेरे पास सिंटेक्स क्या था, जिसको मैंने हाफ यूज किया था, इसके इर्द-गिर्द असल में अगर मैं चाहूँ तो मुझे यूं लिखना चाहिए था, जो मैं हमेशा जब पढ़ाते हैं तो हम इसको ठीक करते रहते हैं। ये लोग सॉरी, यहाँ पे आएगा और यहाँ से, यानी नाउ दैट मीन्स इट इज ऑप्शनल। if I do not give it any condition, it will give me all the data, but if I give it some condition, then it will provide me only that data. So check, how can I do that? Select all from student table, where is the reserved word, क्लास इज इक्वल टू, अगर वो स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आएगा, अदरवाइज नंबर है तो सिंपल होगा, एंड सेमीकोलन। सो नाउ चेक, हाउ कैन वी राइट डाउन इन एक्सेस। सो चेक, मैं इसलिए बेटा करवा रहा हूँ कि आपका जो खौफ होता है ना कि हमसे होगा नहीं, एरर्स आएंगे, तो मैं कमांड्स खुद करवा रहा हूँ। फिर जब आप इसको वेरी करोगे, चेंज करोगे, देन यू विल रियलाइज कि आप कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई राइट डाउन, इसी कमांड को दोबारा से चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। डिजाइन, सिलेक्ट ऑल, तमाम को ले आओ अब, और किन को, स्टूडेंट टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, एंड देन आई कैन राइट डाउन कंडीशन हेयर, बट आई टेल यू राइट डाउन इन द नेक्स्ट लाइन। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है आपको, जिसको अगर देखी हुई है वो हंस रहा होगा, लेकिन जो नए हैं बेटा इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, एरर ढूंढना आसान हो जाता है। वेयर सिटी इज इक्वल टू ISB, और देखो इनको डबल कोट्स में डालना है, मैं अभी नहीं डालूंगा और देखते हैं क्या करेगा। ये देखो मैंने इसको रन किया, देखो याद रखना मैंने जान के पंगा, देखो इसने क्या किया है, इसने यहां से इस ISB को वेरिएबल नेम समझ लिया है। मैंने कोट्स नहीं दी थी, मैंने आपसे क्या कहा था, स्ट्रिंग के लिए क्या करना होता है, कोर्स में लिखना है। कोर्स में राइट। तो ये आप वेरिएबल नेम समझ रहे हैं, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, और देखो जो ही मैं ऐसे क्राइटेरिया सही करता हूँ, कोट्स ISB, क्योंकि तुम्हारे साथ ये अक्सर होता है, तो तुम कहते हो सर हमसे पूछ क्यों रहा है, वो तुम्हें समझ रहा है कि तुमने कोई वेरिएबल नेम दिया है। व्हेन आई रन, सो नाउ चेक, आबिद एंड आबिद ऑफ द इस्लामाबाद आर हियर, यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. कितनी मुश्किल कमांड है मुझे बताओ। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारे सर ने यहाँ से शुरू करना है, लेकिन मैं क्यों ये करवाता हूँ आखिरी दिनों में, अभी ये करवानी आखिर में थी, लेकिन मुझे हुआ कि अभी करवाता हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहे, 2-4 कमांड्स बनाना चाहे, उसको मजा आए कि यार मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आज के प्लान में ये रखा है, जो आज पढ़ाना था इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में होगा, इसी के साथ शामिल हो जाएगा। अब नाउ चेक, just like normal programming languages, we can simply add and class is equal to BSSE and again quotes, ये ख्याल रखना quotes बहुत जरूरी है वरना कंफ्यूज। अब देखो क्या करेगा, किन को लेकर आएगा, लॉजिक क्या बन गई इसकी,
सर इस्लामाबाद के भी और BSSC के स्टूडेंट हो। इस्लामाबाद के और BSSC के, यानी दो एंड लग रहा है और नहीं है. So that means in the last case we were getting Abid and Abid. One Abid was from Islam. Both Abid were from the Islamabad, but one was from the BSCS and the other one was from the BSSC. Now check, it will not give me two records. It will give me only one record. Why? Because I have defined also the class. So now it will bring only that Abid who lives in Islamabad and whose class is BSSE. So when I run this command, check. ओहो अच्छा, हमें आदत पड़ी होती है ना सेमीकोलन लिखने की, वो उसके सिंटेक्स में खुद ब खुद आ रहा था. ठीक है, रन. So now check, it brought, it fetched, it extracted only one record because the condition was class must be BSSE and city must be ISB Islamabad. So now check, this is something that you can design very easily in your, इसको सेव कर लूँ, databases. और यही मेरा पर्पस था. इसमें आगे भी देखेंगे, अभी चेंजेस लाएंगे. ये देखो ये लेकर आ रहा है. And if I change this, like, let me write down a Rawalpindi. I change the criteria. So city is RW. अब खेलना तुम खुद, बस सिर्फ मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे होना है. So now check, only Nasir of Pindi, who is in class BSSC, is here. Yes or no? यस सर. Yes, sir. और मैं इसको भी वहां पर तुम्हें कॉपी कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए भी बड़ा आसान हो. क्योंकि मैं तुम्हें एक आखिरी चीज़, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं तुम्हें एक आखिरी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी देख लो, ताकि आज का जो है ना हमारा जो टाइम ज़ाया हुआ है वो इतना भी ज़ाया ना हो. अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हो गया. सो नाउ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर. देखो मैं एक लाइन में ला रहा हूँ. पहले बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आता है या नहीं? बेशक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने लैपटॉप पे, अपनी नोटबुक्स पे ना लिखो अगर तुम, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि हमने कुछ काम किया था और वो काम ऐसे था. मैं इसको भी सीधा कर देता हूँ. बेशक तुमने इसको लिखना उसी तरह जिस तरह मैंने सिखाया. टीचर खुश होते हैं कि यार इनको अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है और ये बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं. पहले बताओ यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ? यस सर. नाउ चेक. अभी मैं तुम्हें एक शोगल दिखाता हूँ, तुम्हें और मजा आएगा कि देखो, we have created these queries, yes or no, but these were with the help of the design view. याद आ रहा है, ये हमने डिजाइन व्यू में बनाई थी. Yes, sir. यस सर. एंड नाउ आई गो टू द डिजाइन व्यू. चेक करो, ये मेरी क्यूरी थी. याद आ रहा है सबको कि नहीं? पहले ये बता दो. Yes, sir. Yes, राइट. सर. अब देखो, आई वॉन्ट टू सी what happens in the background. मुझे ये चाहिए कि तुम बच्चे इतने स्ट्रांग हो कि तुम्हें ये पता हो कि यार इसके पीछे भी सीक्वल ही चल रही है, कोई कमाल नहीं है. ये तो GUI की वजह सर ने एक्सेस इसलिए लगवाई थी, इसलिए हमें कहा था पढ़ो कि हम में से बहुत सारे बच्चों ने डेटाबेस में कुछ बनाया ही कभी नहीं था, तो हमें आसान टूल मिला. लेकिन देखो तुम कमांड लिख सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को खोलता हूँ अपनी कमांड को डिजाइन व्यू में. और देखो यहाँ पे लेफ्ट पे अब क्या लिखा वो नजर आ रहा है, जरा देखो. व्यू. ये बता रहा है कि तुम इस वक्त डिजाइन व्यू में हो. इसको ड्रॉप करो और देखो बेटा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SQL व्यू, SQL व्यू, SQL व्यू. देखो मैं इसे क्लिक करता हूँ. जो ही क्लिक किया, मैं जरा इसको बड़ी स्क्रीन पर ले जाऊं ताकि तुम्हें मजा आए और तुम इसको कहो कि यार ये तो अगला सेमेस्टर में और इसको इंटरेस्ट लेना बेटा. जैसे डेटाबेस में इंटरेस्ट ले रहे हो कुछ लोग, इसमें भी बहुत इंटरेस्ट लेना, क्योंकि ये तुम्हारा एक सब्जेक्ट हम पक्का कर दें. अब देखो जो क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट. पहले तुम देखना, ये वही चीज तो नहीं जो भी हमने पढ़ी है, नोट करो. आई हैव ओनली 10 more minutes, तो जब अगली क्लास शुरू हो रही है थोड़ा सा मुझे साथ साथ चलो. सिलेक्ट, ऐसा ही है. यस सर. देखो आगे पे, देन वी हैव द टेबल नेम डॉट रेज नंबर. ये देखो, तुम देख रहे हो कि नहीं? इनफैक्ट व्हाट हैपेंड, बिफोर रेज नंबर it put the table name, before student name it put the table name, so before the class it put the table name. So this is comprehensive SQL command. If I really delete all these,
लाइक दिस। देखो मैं ऐसे नहीं करता यार, ये तुम फिर ना बाद में भूल जाओगे। अभी ये समझो, टेबल नेम डॉट वेरिएबल नेम, टेबल नेम डॉट वेरिएबल नेम, ये इसका एग्जैक्ट कम्प्रिहेंसिव सिंटेक्स है। और फिर देखो उसने लिखा फ्रॉम, और फिर देखो उसने टेबल का नाम दिया, वेयर उसने कंडीशन दी, लेकिन टेबल नेम के साथ डॉट लगा के क्लास लिखा। यस और नो? यस सर। सिर्फ इसको Yes, मैं sir. हाईलाइट करता हूँ, सिर्फ इसको हाईलाइट करता हूँ। बेटा हम लिखते थे सिलेक्ट रेज नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम। यस और नो? यस Yes, सर। जो Yes. कम्प्रिहेंसिव होता है, जो सही होता है, अव्वल तो इसकी जरूरत नहीं होती, मैं साफ बात मैं मिटा दूंगा अभी 1 मिनट के बाद। लेकिन देखो, अगर यही वाली कमांड को मैं देखूं, तो देखो यहां से मैं स्टूडेंट टेबल का मतलब ये है कि इस टेबल का ये फील्ड, इस टेबल का ये फील्ड, तो मैं इसको मिटा देता हूँ कि मैं तो एक ही टेबल में खेल रहा हूँ फिलहाल। तो मैंने इन सबको मिटाया, और स्क्वायर ब्रैकेट अब मिटानी पड़ेगी। वो इसलिए थी क्योंकि वो साथ में उसका टेबल का नाम भी लगा के ला रहा था। मैं यहाँ से भी टेबल देखो, तुम देखो कितना मैं इसको एकदम से सिंपल करता हूँ। ये देखो, अब तुम कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं था, और तुम वहां से लाए हो जहाँ पे इसने बिल्कुल कंप्रिहेंसिव कमांड बना के रखी थी, फ्रॉम टेबल वेयर। और देखो इसकी इतनी सारी ब्रैकेट्स क्यों है, वजह बताता हूँ। ये देखो, एक तो यहीं से खत्म हो जाएगी, इसको बंद करो, ये देखो अब तुम समझो ये ठीक हो गया। और एक यहां से खत्म कर दो, दो ये हैं, दो ये हैं, बिल्कुल यही है। तो देखो अब ये वही कमांड बन गई, सिलेक्ट रेज नंबर स्टूडेंट नेम क्लास फ्रॉम दिस टेबल वेयर कंडीशन इज दिस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और अब मैं शुगर लगाता हूं कि अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कमांड फिर भी चलेगी। ये देखो, यस और नो? Yes, sir. मेरा यस बेटा सर। ये कमांड है। अब Yes, जरा sir. मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम लोग सीक्वल की कमांड्स लिख सकते हो? बिल्कुल सादी से, टेबल मत क्रिएट करो अभी बिल्कुल भी। क्या तुम सेलेक्ट की कमांड्स लिख सकते हो? Yes, sir. yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो अभी तुम्हारा जो लैब का टाइम है, बस 5 मिनट रह गए हैं क्लास में अटेंडेंस। सारे बच्चे अपना रेज नंबर टाइप कर दो। और सीआर मौजूद है, सेकंड सीआर दानियाल मौजूद है आज? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, मौजूद हो या नहीं? ठीक है। आज का आपका होमवर्क ये है कि अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट की 5 टेबल थे ना, 3-3 कमांड सिर्फ बनाओ, 15 कमांड्स टाइप करो डिफरेंट क्राइटेरियाज के साथ। यस और नो? Yes, sir. ठीक है सर। Yes, sir. और तुम एंजॉय कर, अब तुम खेलना शुरू कर दोगे। जो बच्चे एक्टिव हैं, इस वक्त सोए हुए नहीं है, दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि इट इज नथिंग, इट इज नथिंग। हाँ, जब आपके सर पढ़ाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, जब वो पढ़ाएंगे और आगे जाएंगे, जब इस पे कॉम्प्लेक्स उस पे जाएंगे, तो मजेदार प्रोग्रामिंग शुरू होगी। लेकिन तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या ये बाकी नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह मुश्किल लगा तुम्हें? नहीं सर। नहीं सर, बेसिक पता है सिंटेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस वाले लोग, हम डेटाबेस वाले लोग ये कहते हैं कि ये कमांड, जो लैंग्वेज है ना सीक्वल, ये नियर टू द नेचुरल लैंग्वेज है, अंग्रेजी की तरह की है। तो हम लोग यस सर इसमें बिल्कुल। काम जब कर रहे होते हैं तो हमारी लॉजिक तेज बनती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग, जब अगर किसी का इंटरेस्ट डेटाबेस में डेवलप हुआ है, देन यू ऑल मस्ट गो विद इट। आपको इसके साथ काम करना चाहिए। आप कमांड्स आज बनाओ, अभी बनाओ इस 1.5 घंटे में, एंड यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार मजा आ गया। ठीक हो गया? यस सर। चलो अब आप एक काम करो, अपने दानियाल भी नहीं, आज कौन लेगा? कोई स्क्रीनशॉट लेके सीआर को भेजो कि सर कह रहे हैं अटेंडेंस भेजो मुझे। नमाज लेगा सर। ले लो, बिल्कुल ले लो, स्क्रीनशॉट्स लो। और 2:30 हम लोग मिल रहे हैं, बल्कि 2:20 पे मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि फिर हम सब बैठ सर के एक, 2:30 करें, क्योंकि सर नमाज का टाइम है 2 बजे से 2:30 तक, तो हम इंशाल्लाह ठीक 2:30 है बजे आ ठीक है। नहीं, मैं इसलिए तुम्हें 2:20 कह रहा हूँ, मैं शुरू 2:30 की भी शायद 2:35 पे ही करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ओके ये सर। है कि उसके बाद तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई लॉग इन नहीं हो रहा, तो कम से कम 2:30 से पहले सब लॉग इन हो जाए। ठीक है, ओके सर। ये ओके। वजह है, और कोई वजह नहीं है। सर ये चलो एमसीक्यूज टाइप होगा, किस तरह का होगा? यार, मैं यही सोच रहा हूँ एमसीक्यूज ही मैंने जो किया हुआ है ना, एक कुछ मैंने जमा किए हैं एमसीक्यूज होंगे, और वो आपने इमीडिएट जमा करने होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर एमसीक्यूज हो या शॉर्ट डेफिनेशन हो, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन, तो आप बस वो टाइप करें या उसको लिखें हाथ से और तस्वीर खींच के मुझे भेज दें। सर सबमिट कर। मतलब फॉर्म्स वगैरह होंगे उस पर टाइप करना होगा या पेपर नहीं पे नहीं नहीं, लिखना आपने हाथ से लिखना होगा। होगी सर?
ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि हाँ जी अलग अलग काम हो रहे हैं, सबने एक साथ नहीं किया। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू बेटा लोग, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। स्क्रीनशॉट ले लिए गए हैं? सर जी जी बेटा। हेलो सर, जी जी बेटा बोलिए। एक ईमेल सॉरी की यार, काइंडली रिप्लाई कर दें। कब किया आपने?